and welcome everyone. Today I am starting with chapter number 5 of commercial studies, that is e-commerce. In this chapter we will study about meaning of e-commerce, also advantages of e-commerce over traditional business, also about e-security, e-marketing, e-advertising and ERP, that is enterprise resource planning. So let us start first with the meaning of e-commerce. So as you can see, meaning of e-commerce in general terms is electronic commerce, or the full form of e-commerce is electronic commerce. Okay, कोई भी बिजनेस अगर आप इंटरनेट के हेल्प के थ्रू करते हो तो आप उसको ई-कॉमर्स टर्म के अंदर इंक्लूड कर सकते हो. ओके, so the term e-commerce or electronic commerce refers to any sort of business transaction that involves transfer of information between buyer and seller on internet. Okay, e-commerce means using the internet for business transactions and or commercial transactions which involve the exchange of value, example money, in return for products and services. ठीक है, तो exchange between buyer and seller. ठीक है, तो buyer आपको goods या services सेल कर, seller आपको goods या services सेल करता है. ठीक है, and buyer उसके return में seller को money pay करता है. Okay, electronic commerce or also known as e-commerce occurs daily when sellers and buyers use internet to conduct business transaction. ठीक है, जब भी कोई भी seller, ठीक है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी अगर इंटरनेट यूज करके अपना प्रोडक्ट बी इट गुड्स और सर्विसेज कुछ भी सेल कर रहा है और बायर उसको परचेज कर रहा है, क्लियर, तो आप बोल सकते हो वो ई कॉमर्स का पार्ट है. ओके, so this is a meaning of e-commerce, basically electronic commerce or business conducted with the help of internet. Next is advantages of e-commerce over traditional business. Traditional commerce या traditional business वो जो normal retail shops होते हैं, ठीक है, क्लियर, जो हमारे नियर बाय स्टोर्स जो होते हैं, क्लियर, हमारे घर के आजू बाजू जो स्टोर्स होते हैं उनको हम ट्रेडिशनल कॉमर्स बोलते हैं. ओके, whereas e-commerce is a business which is, you can say, done with the help of internet. Okay, फर्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल रीच एंड ग्लोबल चॉइस. ठीक है, एज अ सेलर, ठीक है, एडवांटेज सेलर के पास ये हो जाता है कि वो अपना प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी सेल कर सकता है. ठीक है, वेरएस कस्टमर के पास एक एडवांटेज ये है कि उसके पास एन नंबर ऑफ चॉइस आ जाती है. ठीक है, बहुत सारा चॉइस आ जाता है, बहुत सारा वेराइटी आ जाता है. वो अपना प्रोडक्ट कहीं से भी, मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी एक्चुअली वो अपना प्रोडक्ट बाय कर सकता है, उसके पास इतनी सारी वेराइटीज होती है. ओके, so first point is boundaries of business are not defined by national borders. ठीक है, कोई भी कंट्री के बॉर्डर के हिसाब से इन 21st सेंचुरी बिजनेस के बॉर्डर्स डिसाइड नहीं होते. क्लियर, बिजनेस आप वर्ल्ड वाइड भी कर सकते हो, आप एमएनसी भी बन सकते हो, दैट इज मल्टीनेशनल कंपनी भी आप बन सकते हो. ओके, e-commerce helps the smallest suppliers to achieve global presence and to conduct business worldwide. The customer benefit is global choice regardless of their location. Yes, customer को पूरा का पूरा global means all over the world कोई भी प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज में जो भी उनको बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल लगता है, उनको जो सूट करेगा वो लोग उसको परचेज कर सकते हैं. So this is the first advantage, global reach and global choice of e-commerce over traditional business. Next point is improved competitiveness from seller's point of view and quality of service for customers. Okay, e-business enables suppliers to improve competitiveness by becoming closer to customer. ठीक है, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके या वेबसाइट्स होते हैं या थ्रू एप्लीकेशन, ठीक है, they always try to come closer to customer by getting more and more information about customer. Improved levels of pre एंड पोस्ट सेल्स सपोर्ट. ओके, सो सेल्स होने के बाद ही नहीं, सेल्स होने के पहले भी अगर क्लाइंट को या कस्टमर को कोई भी टाइप का सपोर्ट चाहिए होता है, सो वो हमेशा उसको अवेलेबल करवाते हैं. इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जितना हो सकता है उतना इन डिटेल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं ऑन देयर वेबसाइट्स और ऑन देयर एप्लीकेशंस. ठीक है, आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कौन है, कौन से कंट्री में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, कौन से ईयर में वो प्रोड्यूस हुआ है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, गाइडेंस टू द प्रोडक्ट यूज, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है उसके बारे में अप्रोप्रिएट वीडियोस अपलोड करते हैं. क्लियर, एंड रैपिड रिस्पांस टू कस्टमर इंक्वायरीज एंड क्वेरीज. ठीक है, जो भी कस्टमर्स के क्वेश्चन होते हैं, क्लियर, या उनके इंक्वायरीज रहते हैं, उनको जितना क्विक, जितना एज सुन एज पॉसिबल वो लोग रिप्लाई कर सकते हैं, वो लोग करते हैं. ओके, द बेनिफिट टू द कस्टमर इज इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस. ओके, कस्टमर खुद अपने आप में ये कंपेयर कर सकता है कि नॉर्मल रिटेल शॉप से ज्यादा बेटर उनको फैसिलिटी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म देता है. ठीक है, सो अगेन ये भी एक एडवांटेज है टू द कस्टमर एज वेल एज टू द बिजनेस.
Next point is mass customization or personalized products and services. Personalized products and services means products and services according to the customer's choice or customer's will. Okay, so with electronic interaction, that is passing of information, suppliers are able to gather information on the needs of each and every individual consumer या customer. ठीक है, so with the help of electronic आप बोल सकते हो या e-commerce, okay, सेलर जितना भी हो सकता है कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. ओके, क्लियर. और वो इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करके ऑटोमेटिकली आपको ऐसे प्रोडक्ट ऑफर करता है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ आप क्या सर्च कर रहे हो ऑन द ई पोर्टल, जो भी उनका ई कॉमर्स वेबसाइट है वहां पे. ओके, दिस रिजल्ट्स इन कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स एट मास मार्केट प्राइस. मींस क्या कि आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं, दैट टू एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस, जो आपको रिटेल शॉप से भी बहुत कम प्राइस में मिल सकता है. क्लियर. सो दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज टू द कस्टमर कि जितना कम प्राइस पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट, रिटेल शॉप्स उतने कम प्राइस पे वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते और उनको कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट मिलता है. कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट मींस अकॉर्डिंग टू देयर ओन प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, उनको जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो प्रोडक्ट ई कॉमर्स पोर्टल या ई कॉमर्स कंपनी उनको अवेलेबल करवाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्टन और इरेडिकेट. इरेडिकेट इज टू रिमूव सप्लाई चेन. Okay, so what is the supply chain? Supply chain is basically starts from manufacturer. Okay, एक पूरा का पूरा एक आप बोल सकते हो एक चेन होता है, ठीक है, जहां से गुड्स फ्लो होता है. ओके, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर आता है, होलसेलर के बाद यू कैन से एजेंट, एजेंट के बाद रिटेलर एंड रिटेलर के बाद फाइनली कंज्यूमर आता है. ओके, सो ई कॉमर्स क्या करता है कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने का ट्राई करता है. ओके, सो या तो जो भी सप्लाई चेन है उसको शॉर्ट कर देता है या तो उसको कंप्लीटली निकाल देता है और डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर रीच करता है. ओके, गुड्स आर शिप्ड डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द एंड कंज्यूमर. द साइकिल टाइम इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजैक्शन is considerably reduced due to the high speed of e-business. इतना फास्ट स्पीड कैसे हो जाता है? बिकॉज इसके जो भी पार्टिसिपेंट्स है लाइक मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर, एजेंट, रिटेलर या एंड कंज्यूमर, ये पार्टिसिपेंट्स को निकाल देता है उसमें से और डायरेक्टली रीच करने की कोशिश करता है. अगर डायरेक्टली नहीं पहुंच पाता सो मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर एंड देन फाइनली टू द कंज्यूमर. ओके, information can be exchanged at the click of the mouse between the consumer and the manufacturer. ठीक है, बहुत क्विकली एंड बहुत फास्ट इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाता है. ठीक है, बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर एंड द कस्टमर बेनिफिट इज द एबिलिटी टू रैपिडली ऑब्टेन द प्रोडक्ट दैट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, कस्टमर को ये बेनिफिट होता है कि जितना फास्ट उसके लिए पॉसिबल हो सकता है उतना फास्ट उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो सकता है. ठीक है, earlier they used to take like 6 days 7 days. आजकल 24 hours में भी ऑनलाइन पोर्टल्स ऐसे हैं जो आपको 24 hours में भी आपको प्रोडक्ट्स या गुड्स या सर्विसेज डिलीवर करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सटेंशियल सेविंग एंड रिडक्शन इन कॉस्ट बोथ फॉर अगेन सेलर एज वेल एज बायर. ओके, एक नॉर्मल रिटेल शॉप्स जो होते हैं, ठीक है, उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स बिजनेस के नहीं होते. क्लियर. एग्जाम्पल, रेंट होता है शॉप का, ठीक है, salary of the salesperson, then electricity bill and other expenses, maintenance expenses, etc. ठीक है, जो नॉर्मल ई कॉमर्स वेबसाइट वालों को इतना एक्सपेंसेस नहीं होता है. सो जब भी उनको ये सब एक्सपेंसेस नहीं होते उनका कॉस्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है और वो उसका एडवांटेज या बेनिफिट किसको पास ऑन कर सकते हैं? अपने कस्टमर को. ओके, सो मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ ई बिजनेस इज रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ट्रांजैक्शन कॉस्ट उनके जितने मिनिमम हो सकते हैं उतने मिनिमम होते हैं एंड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि कस्टमर को कम प्राइस पे, लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज वो अवेलेबल करवाते हैं. ओके, सो सब्सटेंशियल प्राइस रिडक्शन फॉर कस्टमर. ओके, सो दिस इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ कस्टमर एज वेल एज द सेलर. ओके, एंड दिस इज एन एडवांटेज टुवर्ड्स कंज्यूमर. Next point is novel or new business opportunities and new products or services. Means नए innovative products and services आप e-commerce platform के through बहुत easily launch कर सकते हो और आप successful भी हो सकते हो. Okay, so e-commerce portal provides opportunity for entirely new products or services. Let us take example of like pharmacy. Okay, a decade ago
ठीक है, 10 साल पहले किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि मेडिसिन भी लोग ऑनलाइन परचेज करेंगे, ठीक है, बट इन दिस सेंचुरी, ठीक है, लोग मेडिसिन एज वेल एज मेडिकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, ठीक है, वो अभी ऑनलाइन परचेज करने लग गए। क्लियर। सेम इज लाइक जस्ट डायल। ओके, सो जस्ट डायल भी ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। क्लियर। आपको कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करवाते हैं फॉर ऑल एसेंशियल सर्विसेज। ओके, क्लियर। तो ये भी सोचा नहीं था, ठीक है, उसके लिए पहले एक डायरेक्टरी आता था, फोन डायरेक्टरी, ठीक है, but now it is also possible through online. Okay, the same is like OLX. Okay, OLX is basically a platform, okay, which provides you you can say a platform to sell your old products या used products, ठीक है. So it is a platform which connects a customer to customer, ठीक है. This is known as C2C business. Okay, clear. So ये भी एक टाइप का एक न्यू और इनोवेटिव बिजनेस है जहां पे आप अपने यूज्ड या ओल्ड प्रोडक्ट सेल कर सकते हो किसी ऐसे पर्सन को जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है और आपको बहुत फेयर प्राइस भी मिलता है। क्लियर। सो न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए भी ई कॉमर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वीनियंस। कन्वीनियंस टू द कस्टमर्स, कंफर्ट टू द कस्टमर्स। ओके, सो ऑन द इंटरनेट ट्रांजैक्शंस कैन बी मेड 24 आवर्स अ डे, 7 days a week and 365 days a year। मतलब आप जब भी चाहो तभी एक ट्रांजैक्शन, एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हो ऑन इंटरनेट। नेक्स्ट इज वन कैन असेस एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। मतलब आप कहीं पे भी बैठ के आप कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट या पोर्टल या ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च करके थ्रू ई कॉमर्स आपको जो भी ऑर्डर प्लेस करना है आप कर सकते हो। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई ऐसा हॉरिजॉन या कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं है जो आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। ओके, सच फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड्स ग्रेट कन्वीनियंस टू द सेलर्स। ठीक है, सेलर्स को तो ये कन्वीनियंस है कि वो कहीं से भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। बायर्स एंड एम्प्लॉयज के लिए, मतलब कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज के लिए भी एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हो एडवांटेज है या बेनिफिट है थ्रू ई कॉमर्स। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स ओवर ट्रेडिशनल बिजनेस इज पेपरलेस सोसाइटी। Okay, so with the help of e-commerce, we can create a society which is less dependent on paper. ठीक है, in that way we are also, you can say, helping environment. Okay, so जितने भी आपके basic requirements होते हैं जो आपको paper form में मिल जाता है, भले वो आपका invoice हो, bill हो या कोई भी दूसरा कोई भी document हो, clear, तो आपको e-commerce के through बहुत easily आपके email पे मिल सकता है। Okay, so e-business reduces dependence on paperwork. टैक्स पेयर्स कैन पे टैक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, गवर्नमेंट को आज के टाइम पे आपको जो भी टैक्सेस पे करना है, भले वो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, यू कैन डायरेक्टली पे विद, यू कैन से ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कैन ग्रांट लाइसेंसेस एंड अप्रूवल्स, दैट इज परमिशंस, विदाउट मच पेपर। ठीक है, तो आप अपना विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, मनी एंड यू कैन से एनी टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है, आपको गवर्नमेंट से कोई भी अप्रूवल या परमिशंस चाहिए होते हैं, ठीक है, आप उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो एंड गवर्नमेंट आपको ऑनलाइन परमिशन भी ग्रांट कर सकता है। ओके, क्लियर। ऑल्सो आप जो पासपोर्ट्स या लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, क्लियर, तो उसके लिए जो अपॉइंटमेंट का रिक्वायरमेंट होता है टुडे, आप उसके लिए भी ऑनलाइन परमिशन ले सकते हो, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हो, क्लियर, एंड खाली आपको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए वहां पे पर्सनली विजिट करना पड़ सकता है। Okay, so this is also an advantage of e-commerce, that is to create or helps in creating a paperless society. Next advantage of e-commerce is speed. Speed of transaction through e-commerce. Okay, so much of buying and selling involves exchange of information between buyer and seller. मतलब buyer अपना information देता है seller को कि उसको क्या टाइप का, कौन से वेराइटी का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, on the internet, information can be exchanged at the click of a mouse. E-business reduces the cycle time of transaction. Okay, so as soon as जितना जल्दी सेलर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचता है, ठीक है, कस्टमर का, वो उतना ही क्विकली उनको रिस्पॉन्स देता है कि उनके पास अकॉर्डिंग टू देयर विश क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज अवेलेबल है। ओके, क्लियर। और ई कॉमर्स के वजह से जो सप्लाई चेन का भी रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से ट्राई करते हो लोग डायरेक्ट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट्स पहुंचाने का, क्लियर। सो उसके वजह से स्पीड ऑफ द ट्रांजैक्शन इज वेरी क्विक इन ई कॉमर्स। Okay, so again this is an advantage of e-commerce. Next point is lower investment. In e-commerce or in e-business there is lower investment as compared to traditional business. It is much easier to start an e-business than in traditional business. Capital required is much less. A small firm can obtain the same benefits of internet technology which are available to big firms. मतलब जितना बेटर आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज करो, आप बड़े से बड़े फर्म को भी कम्पीट
कर सकते हो. So again, this is an advantage of, you can say, e-commerce to the business.